Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shilpa Data Insights. In total, there were 4 offers from different product-based and service-based companies. It's not impossible कि आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। काफ़ी कॉल्स आए हैं मुझे, 3-4 कॉल्स ऐसा था कि आ ही जा रहे हैं और नोटिस पीरियड में तो ऐसा होता था कि और कॉल्स भर जाती थी, 7 to 8 आ रही हैं और मैं फिर ऐसा रहता था कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है और सर्टिफिकेशंस भी AWS की लिस्टेड है, तो कॉल्स आने में आई गॉट बेनिफिट। SQL के अंदर दे कैन आस्क यू अबाउट जॉइंस, विंडो फंक्शंस, CT, सब क्वेरीज। पाइथन के अंदर सिमिलरली आपसे लिस्ट के बारे में, डिक्शनरी के बारे में कुछ कोड दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। और नौकरी का मैं बोलूँगी कि मैंने यूटिलाइजेशन ऐसे मतलब बहुत अच्छे से किया। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल, सो दे जज यू ऑन बेसिस ऑफ योर अप्रोच दैट यू आर प्रोवाइडिंग। SQL हो गया, पाइथन के बारे में मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी, DBT, स्नोफ्लेक और एयरफ्लो। Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we will be actually covering one more podcast, and this podcast will be with one of the amazing person in data engineering field. And today we will have a very good insight, it seems, because she has cracked a lot of offers already, and some are product based, some are service based, and ultimately she joined one of the major company MNC, which I am not going to disclose, which she will be able to tell her in her introduction. And I would love to hear the insights from her, and let's see what all factors made her join the most prestigious MNC company and how exactly she cracked so many offers. It's really overwhelming to actually hear if someone is cracking so many interviews and with all the hard work and smart work that she has done. So let's welcome Mansi Goel, who is an amazing data engineer in the field, and she has excelled in data engineering. So we will get a lot of insights for it. Thank you so much for joining, Mansi. So I'll just go ahead, give you the floor. हम लोग लेट्स से वी विल डू इट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिला के आई जस्ट गेव एन इंट्रो इन दिस, तो दिस विल बी स्पेसिफिक टू हिंदी ओनली. सो लेट्स गो हेड एंड हम लोग देखते हैं कि आपका कैसा जर्नी रहा डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में. आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो आप बताइए अभी आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो और कैसा आपको लग रहा है मतलब इस कंपनी में ज्वाइन कर. हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच शिल्पा। तो अभी करंटली आई एम वर्किंग एज़ सीनियर डेटा इंजीनियर एट टाइड एंड इट्स आई हैव जॉइन्ड बैक इन अप्रैल दिस ईयर ओनली। इट्स बीन रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग देयर और क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है मुझे डेटा इंजीनियरिंग में। Giving a brief intro about my background as well. So I have overall experience of 3.5 years and campus placement से मेरी placement was first in the Gemini Solutions. It's a service based company. तो मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करी थी. मुझे डेटा इंजीनियरिंग का एक्सपोजर एक्सपीरियंस वहीं से मिला था एंड देयर आई स्पेंट अराउंड 2 years. And उसके बाद I switched as data engineer into ZS Associates. And उसके बाद then when I started preparing again for the interviews, तो अभी मेरे पास in total there were 4 offers from different product based and service based companies, and then finally I joined Tide. ओके, बढ़िया है. मतलब आपने जब कैंपस प्लेसमेंट की बात बोली तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज डेटा इंजीनियरिंग में कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत अच्छी बात है. मतलब पहले हाँ जी. नहीं होता था, अभी डेटा इंजीनियरिंग में कैंपस प्लेसमेंट. तो उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे जब आपके कैंपस प्लेसमेंट हुए थे डेटा इंजीनियरिंग में. So if I talk about during campus placements, so it was not completely, I would say, data engineering. It was mostly for the, I would say, support or operations role. जो their designation was software engineer, but mostly I get into operations role. But वहाँ पर starting में when I started working in support work, उसके बाद there was data engineering tools जो वहाँ पे use होते थे, right? तो धीरे धीरे आफ्टर अ ईयर आई गॉट इनटू और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कुछ डेवलपमेंट वर्क करने की. तब मुझे डेटा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस मिला.
आज की डेट में हम थोड़ा कंपनी ज़्यादा देखते हैं ऐसे जो डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं, बट इट वाज बैक देयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्टार्टेड आई स्टार्टेड एज ऑपरेशंस, देन आई ग्रेजुअली थोड़ा खुद से लर्न करके थोड़ा टीम की जो काम कर रहे हैं कोर डेटा इंजीनियरिंग में वहाँ पे उनकी मदद लेकर फिर मैंने डेटा इंजीनियरिंग सीखी थी। तो अच्छा। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत मतलब मस्त था क्योंकि ट्रांज़िशन आपने खुद ही किया, ऐसा नहीं कैंपस यस, प्लेसमेंट ने आपको वो अपॉर्च्युनिटी दी, जो कि यस, बहुत अच्छा होता है अगर आपको मिलता है, बट बहुत हाँ जी, सिनेरियोज़ में नहीं होता है, तो आपको खुद ही ट्रांज़िशन करना पड़ जाता है ना, अंदर ही अंदर यस। कंपनीज़ में। तो आपने खुद ही सीखा, सीक्वल सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, उसके बाद आपने डेटा इंजीनियर में गए। तो आप जब कंपनी में आपने सीखा, तो आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया जिसमें आपने सीखा या आपने खुद ही से खुद प्रोजेक्ट्स बनाए, खुद ही सीखा, खुद ही ट्यूटोरियल्स देखा, कैसे था वो जर्नी? अ, तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर की अगर बात करूँ, इट वाज़ कोर ऑपरेशंस, राइट? मैं कोर ऑपरेशंस और सपोर्ट वर्क में ही काम कर रही थी। ट्रांज़िशनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट टफ रहा, क्योंकि इन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन अ ईयर वाज़ इन दिस। तो बहुत मेजर मैं काम नहीं बोलूँगी कि मुझे वहाँ पर कंपनी के दौरान ही सीखने के लिए मिला। बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा पार्ट होता था जो कि मैं किसी और टीम के साथ बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर थोड़े बहुत इनसाइट्स ले रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई टास्क मिल जाता है, कुछ भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी लगती है, तो मैं मिस नहीं करती थी। मैं बोल देती थी कि इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज़ असाइन दिस टू मी। तो वहाँ पर मुझे मदद मिलती थी। प्लस सीक्वल और पाइथन की प्रैक्टिस मैंने खुद से करी है। देयर वाज़ टूल लाइक स्नोफ्लेक और एयरफ्लो जो थे वो यूज़ होते थे। प्लस वहाँ पर डीबीटी यूज़ होता था। तो देयर वर सम अनदर अदर फ़ोक्स इन टीम जो उस पर काम करते थे, वो लोग भी करते थे। तो मैं उनके साथ बैठ के काम को देखती थी, समझती थी कि कैसे हो रहा है, बिकॉज़ दीज़ आर सम ऑफ द मेजर डेटा इंजीनियरिंग टूल्स हुँ, जिनकी मार्केट में डिमांड है। तो आई वांटेड कि एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा टेक स्टैक हो जिसको मैं अपने रिज़्यूमे में मेंशन कर सकती हूँ कि मुझे इसके ऊपर एक्सपोज़र है। बेशक से मेरे पास इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आई हैव नॉलेज ऑफ दीज टूल्स। तो सीक्वल हो गया, पाइथन के बारे में मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी खुद से। मैंने एफर्ट डाला, प्लस जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम असाइन होता था या फिर मैं खुद से जाकर लेती थी, मैं उसमें वो एफर्ट डाल के वो करती थी। तीसरी चीज़ डीबीटी, स्नोफ्लेक और एयरफ्लो, इन टूल्स पर मैंने थोड़ा एक्सपोजर वहाँ पर ले लिया था। कुछ कुछ काम आता था तो आई ट्राइड कि मैं उसके ऊपर अपना बेस्ट दूँ। Apart from that, I did 2 AWS certifications in Gemini. There it was कि 1 साल मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में यूजुअली होता है ऐसा कि सर्टिफिकेशंस करना थोड़ा-सा मैंडेट भी होता है, और दे प्रेफर कैंडिडेट्स, अगर मतलब अगर एम्प्लॉइज़ कर लेते हैं तो। हुँ, और तो वहाँ पर मैं एडब्ल्यूएस की 2 सर्टिफिकेशंस लाइक क्लाउड प्रैक्टिशनर और डेवलपर एसोसिएट, 2 सर्टिफिकेशंस करी थी, जिसकी मदद से लाइक अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग का टेक स्टैक रिज्यूमे में लिखा हुआ है और सर्टिफिकेशंस भी एडब्ल्यूएस की लिस्टेड है, तो कॉल्स आने में आई गॉट बेनिफिट। हुँ, मुझे फ़ायदा मिला था उस चीज़ का। हुँ। तो ये पूरा मतलब जर्नी था जिससे मैंने स्टार्ट और थोड़ा बहुत सही है बिकॉज़ आपने बहुत ऐसे-ऐसे। एक्स्ट्रा वर्क किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस काम हुँ, किया है, उसमें दूसरे टीम्स के साथ जाके कोलैबोरेट करके आपने किया है, तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट यस, डाला है अपार्ट फ्रॉम आप यस, काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। वो बहुत एक्चुअली सही है बिकॉज़ अदरवाइज़ आप खुद ही कितना लर्न कर लोगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जैसे आपने बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स उठाए थे, स्नोफ्लेक, एडब्ल्यूएस, डीबीटी, ये सब बहुत हुँ, मार्केट में डिमांड था, तो बहुत सही टेक स्टैक में आपने चीज़ें की थी, तो बहुत बहुत सही है वो चीज़। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे आपने ट्रांज़िशन के दौरान जब आपने सीवी प्रिपेयर किया तो मतलब व्हाट थिंग्स यू केप्ट इन माइंड कि आप में ये चीज़ें होनी चाहिए आपके सीवी में ताकि आपकी शॉर्टलिस्ट हो सीवी? जैसे आपने बोला सर्टिफ़िकेशंस, उसके अलावा हुँ। आपने क्या-क्या नोट डाउन किया था? तो पहली बात मतलब एक चीज़ और ऐड करूँगी कि बहुत सारे जो लोग मुझे डीएम करते हैं या पूछते हैं लिंक्डइन पर भी, जो कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, वो लोग स्टार्टिंग में होता है ऐसा कि ऑपरेशंस और सपोर्ट में, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप ट्रांज़िशन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। मतलब इफ आई डिड इट तो आप भी कर सकते हैं। एफर्ट डलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डलेगा, बिकॉज़ आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कुछ भी मेंशन करने के लिए नहीं है। तो हुँ, वहाँ पे यू हैव टू टुक
help of the other members in the team. You have to take help from the teams जो core data engineering पे काम कर रही हैं, उनकी मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा उनसे, और उनके प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ताकि एक इंडस्ट्री में डेटा इंजीनियरिंग का काम कैसे हो रहा है वो पता लग सके. इवन इफ आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो पर्सनल, आप कुछ इनसाइट्स वहाँ से लेके समझ बेटर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, राइट. सीवी की अगर मैं बात करूं तो सीवी को कैसे रखना चाहिए. पहली चीज़ तो अगर डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक रिज्यूमे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो डेटा इंजीनियरिंग की स्किल्स उसमें आपने मेंशन करी हुई हैं, राइट. इट्स डेटा इंजीनियरिंग रेलेवेंट, क्योंकि एटीएस के थ्रू स्कैनिंग हो रही है एंड रिज्यूमेज जो फिल्टर होते हैं दे फाइंड और स्कैन दी रिज्यूमेज बेस्ड ऑन सम कीवर्ड्स जो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा इंजीनियरिंग कीवर्ड्स हैं जिनसे तुम्हारे रिज्यूमे में देखा जाता है वेदर दे आर लिस्टेड और नॉट. सेकेंड थिंग इज द सर्टिफिकेशंस दैट आई मेंशन, वो करना बेटर रहता है फॉर कॉल्स. मतलब हो सकता है मे बी इन इंटरव्यूज इतना ज़्यादा उसकी बात ना हो, लेकिन कॉल्स आने में वो थोड़ी वेटेज रखते हैं. उसके अलावा जो प्रोजेक्ट सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट्स या फिर एक्सपीरियंस मैटर कर लिस्ट कर रहे होते हो, वहाँ पे ट्राई टू लिस्ट दी मोर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कि आपने मतलब किस तरह से पाइपलाइंस पे काम किया, कितना उससे इम्पैक्ट हुआ, क्या बिजनेस वैल्यू थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, क्या बिजनेस वैल्यू जनरेट हुई, किस तरीके के क्या पर्टिकुलर इंसाइट्स थे अबाउट द. तुम अपना रोल भी लिखो, अपना रोल जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें थी, टेक स्टैक लिखो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने ये टूल्स का यूज़ किया. उसके अलावा यू कैन मेंशन अबाउट द इम्पैक्ट, द बिजनेस इम्पैक्ट. उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जब डेटा हायरिंग मैनेजर्स के पास रिज्यूमे जाता है, दे व्हेन दे गो थ्रू इट तो इट मतलब चांस बढ़ जाता है कॉल्स आने का. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. उसके अलावा आई वुड से कि जो मतलब लिंक्डइन का लिंक है उसको रखो, गिटहब का अगर है वो भी रख सकते हो, सर्टिफिकेशंस के भी लिंक्स रखो रिज्यूमे के अंदर. तो ये आई थिंक ये सब पॉइंट्स थे जो मैंने टेक केयर करे थे. उसके बाद नंबर ऑफ कॉल्स में मुझे डिफरेंस मिला. अच्छा, बढ़िया। बिकॉज़ आप सर्टिफ़िकेशंस की बात कर रहे हो, आप लिंक्स दे रहे हो, तो वो लिंक रीडायरेक्ट हो रहा है आपका सर्टिफ़िकेशन दिखाने के लिए, राइट? हाँ जी, हाँ अ, जी. अच्छा, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी बनता है कि हाँ, आपने हम्म. सर्टिफ़िकेशन किया है सच में और इतने हाँ से जी. इतने टाइम के लिए वैलिडिटी, बिकॉज़ सबका 2 साल का यस. मोस्टली वैलिडिटी रहता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी होता है। बिकॉज़ हायरिंग मैनेजर मोस्टली देखेगा वो, एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखे, पर एटलीस्ट हाँ, अगर है हाँ. तो उसको पता है कि हाँ, आपने कर रखा है एक्चुअली में। तो आपने कई बार आप ऐसा भी होता है लास्ट के राउंड्स में लाइक कोई सीनियर मैनेजर ले रहा है या फिर कोई डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर ले रहा है, उनके पास सिर्फ आपका रिज्यूमे है, राइट. हुँ, कई बार खोल लेते हैं और हो सकता है उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन के बारे में वो बहुत इंटरेस्टेड है, लाइक AWS की सर्विसेज कुछ यूज हो रही है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड. दे मे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस ट्रू। कि लेट्स स्टार्ट विद कि आपने ग्लू में क्या किया है, आपने हुँ, एयर फ्लो के बारे में वो कुछ भी कोई भी टूल भी लिस्टेड है और दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, या फिर कंपनी पीओसी कर रही है उसके ऊपर, दे वांट टू यूज दैट टूल, दे कैन मे आस्क द क्वेश्चंस. तो रिज्यूमे में जो भी लिखा है या फिर जो भी सर्टिफिकेशंस करी है, मेक श्योर चीजें ट्रुथफुल हो रिज्यूमे में, बिकॉज किसी भी राउंड में कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हें पकड़ के कुछ भी पूछ सकता है. बहुत तो बढ़िया। ये चीजें हुई हैं. यस, बिकॉज जेडएस में भी ऐसा हुआ था व्हेन इट वाज माय सेकंड टेक्निकल राउंड. तो जो इंटरव्यूअर था ही हैज रिसेंटली मतलब ऐसा था कि उन्होंने 1-2 महीने पहले ही बिल्कुल रिसेंट में AWS का पेपर दिया था. तो मेरे को 5-6 महीने हो गए थे एंड ही वाज लाइक कि आपने भी AWS का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद AWS ओनली, कि आपको कितना याद है, क्या कॉन्सेप्ट. तो पूरा का पूरा राउंड AWS पे हुआ था. इट वाज तो ऐसा कुछ भी मतलब कोई टूल या किसी सर्टिफिकेशन को उठाकर या फिर वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड है तो हो सकता है कि वो बाकी सारी चीजें छोड़ के उसी पे डीप डाइव चले जाए, इंस्टेड ऑफ हर टूल को कवर करना या फिर प्रोजेक्ट और सीक्वल लिखवा ली, इन सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करने की बजाय वो एक चीज़ में डीप डाइव भी हो जाता है कई बार. हुँ। तो उस चीज़ का भी थोड़ा मेक श्योर करना है.
हाँ, बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ लिख देते हैं जो जिस पे उन्होंने काम हाँ। ही नहीं किया है, जो नॉलेज ही नहीं है। और जब क्वेश्चन पूछते हैं हायरिंग मैनेजर कि हुँ। इसके बारे में बताओ क्या किया था? इसमें तो बस मैंने बस स्टडी किया था, इतना बोल देने से नहीं होता है, तो हाँ, उनको बहुत ही हाँ, गलत इंप्रेशन आता है। तो जो भी लिख रहे हो हाँ। बहुत ट्रूथफुल होना चाहिए एक्चुअली कि हाँ, आपको मालूम है यस, इसके बारे में। चाहे वो थोड़ा ही यस। क्यों ना मालूम हो, उतना आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। कि और सर्टिफ़िकेशन किया है तो उसमें तो डेफ़िनेटली आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा है, क्या किया है, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, यस। एवरीथिंग तो बिल्कुल, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, तो हाँ जी। आपने सीवी बहुत सारे कंपनीज़ में भेजे होंगे, तो आपने कैसे भेजे? मैंने कोई पोर्टल से किया या कोई रेफरल, लिंक्डइन? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था आपको सीवी शॉर्टलिस्ट करवाने का? हुँ। अ, तो नौकरी का मैं बोलूँगी कि मैंने यूटिलाइज़ेशन ऐसे मतलब बहुत अच्छे से किया। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर द वन्स हू आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग बिकॉज़ नौकरी से रिस्पॉन्ड आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। राइट? तो नौकरी पे आई केप्ट माय प्रोफाइल अपडेटेड। हर दिन ऐसा होता है उसका एल्गोरिदम वर्क्स लाइक दैट इफ यू रिफ्रेश इट डेली तो आपकी प्रोफाइल और कैंडिडेट्स की प्रोफाइल से इट शोज़ योर प्रोफाइल ऑन अपर साइड। तो उ तो उसपे आप लोग को अपनी प्रोफाइल डेली अपडेट करनी है, नौकरी पे। उससे बहुत ज़्यादा कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किल्स क्या मेंशन करी है उस वो ऑब्वियसली मैटर करता है, तो नौकरी पे जो पूरा का पूरा प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखो। उसमें जो भी स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, हेडलाइन जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए वहाँ पे सब कुछ। वहाँ पर मेरी प्रोफ़ाइल थी सेकंड लिंक्डइन से जो ईज़ी अप्लाई होता है मेरे लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, मैंने बहुत वहाँ से अप्लाई करा है। मुझे ऐसा लगता था कि टाइम ही जा रहा है, कॉल्स नहीं आ रही है लिंक्डइन से, तो आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर रेफरल्स ऑन लिंक्डइन। उसमें जो भी मुझे ऐसे जॉब पोस्टिंग दिखती थी जो अभी रिसेंट है और मेरे टेक स्टैक के अकॉर्डिंग मैच भी कर रही है, तो आई स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू पीपल वर्किंग इन दैट कंपनी और मैं ट्राई करती थी कि डेटा इंजीनियर्स को ही सेंड करूँ। क्योंकि उन्हें थोड़ा-सा टीम्स का या डेटा इंजीनियरिंग में हायरिंग चल रही है, किन टीम्स में चल रही है, थोड़ा-सा उन्हें पता होता है। तो उनसे मदद मिल सकती है। तो वहीं पे मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के मैं अपना एक टेम्पलेट प्रिपेयर किया हुआ था। उसमें टेक स्टैक मेंशन किया हुआ था और मैं इस जॉब के लिए क्या कहते हैं मैं देख रही हूँ। जॉब आईडी भी मैं मेंशन करती थी, साथ में अपना रिज़्यूमे अटैच करती थी। रिज़्यूमे में मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे देती थी इंस्टेड ऑफ पीडीएफ कि वो डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ओपन करें, नहीं तो सीधा लिंक दे देती थी मैसेज के अंदर। तो लिंक्डइन से रेफरल से भी मुझे कुछ कंपनीज़ में कॉल्स मिले हैं। उसके अलावा इंडीड और इंस्टा हायर पर भी मैंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं आई मुझे वहाँ से, बट ऐसा था कि इफ रिक्रूटर्स मल्टीपल पोर्टल्स पे एक्टिव रहते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर पोर्टल पे एटलीस्ट हमारी प्रोफाइल बनी हो। अगर हम नहीं भी एक्टिव हैं, तो रिक्रूटर्स के पास एटलीस्ट किसी तरह से हमारी प्रोफाइल शो हो जाए। तो मैं हर पोर्टल पे अपना जो प्रोफ़ाइल है, रिज़्यूमे है, वो अपलोड करके रखती थी, ताकि अगर रिक्रूटर को इंडीड पे दिखेगा, इंस्टा हायर पे दिखेगा और थोड़ा भी पसंद आएगा, वो फटाफट कॉल कर ले मुझे। तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करनी चाहिए कि अकाउंट मतलब रिज़्यूमे ही अपलोड नहीं किया हुआ। और ऐसा भी होता है इंस्टा हायर पे भी सेम रिक्रूटर एक्टिव है और उसी कंपनी में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई और एचआर भी देख रहा है एंड ही मे बी एक्टिव ऑन नौकरी। तो हुँ, कंपनी साइड पे भी आई थिंक कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं, दे बुकमार्क द प्रोफाइल्स। तो यस। दीज़ टूल्स आई हैव टेकन हेल्प ऑफ। इनके अलावा तो नहीं किया, बट इनसे मतलब काफ़ी कॉल्स आए हैं मुझे। 3-4 कॉल्स ऐसा था कि आ ही जा रहे हैं और नोटिस पीरियड में तो ऐसा होता था कि और कॉल्स बढ़ जाती थी, 7 टू 8 आ रही हैं और मैं फिर ऐसा हो जाता था कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो ऐसा मैं ऐसा बताना चाह रही हूँ कि ये सिचुएशन भी आती है, जिनको कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो दिस ऑल्सो कम्स बट प्रॉपर एक तरीके से या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना पड़ता है, देन यू विल सी रिजल्ट्स ऑल्सो। तो जब आपके पास कॉल आई थी, कितने वर्क फ्रॉम ऑफिस आया था और कितना रिमोट अपॉर्च्युनिटीज़ आए थे? कुछ बहुत सारे अमाउंट्स किस में थे? रिमोट में थे या वर्क फ्रॉम ऑफिस? ओके। तो जो वैसे मैं मोस्टली अगर कंपनीज़ की बात करूँ, तो वो हाइब्रिड रहता है।
आजकल जो है वो हाइब्रिड ही प्रोवाइड करते हैं, 2 to 3 डेज बोल रहे थे। कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनका वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था, बट मोस्टली मुझे हाइब्रिड मिले। और जो मेरे पास आउट ऑफ 4 3 ऑफर्स थे, उसमें 3 आउट ऑफ 4 3 ऑफर्स वर रिमोट। उसमें ऐसा था कि मतलब टीम्स नहीं जा रही थी, मतलब उनका ऐसा नहीं था कि वो कंपनीज ही रिमोट हैं बिल्कुल, बट उनमें जो टीम्स में मेरा हुआ था, मतलब जिन डेटा इंजीनियरिंग टीम्स में मुझे काम करना था, दे वर वर्किंग कंप्लीट रिमोट। तो ये आजकल थोड़ा हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि रिमोट सब लोग काम कर रहे हैं, बट कंपनी ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोलती है कि इट विल बी रिमोट ओनली, वो हाइब्रिड ही बोलते हैं। कि उसके बाद कैंडिडेट बोलेगा कि आपने पहले मुझे रिमोट बोला था और अब तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए दे डू मेंशनड मी ड्यूरिंग कॉल की हाइब्रिड है, बट लेटर आई गॉट टू नो कि टीम्स वर वर्किंग रिमोटली कंप्लीटली। ओके। तो ऐसा था, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। तो आपने सीवी आपके शॉर्टलिस्ट होने के बाद, लेट्स से फॉर टाइप कंपनी, राइट? तो हाउ मेनी राउंड्स वेयर देयर टोटल, एंड व्हाट ऑल राउंड्स, यू कैन जस्ट टेल द नेम्स ऑफ इट? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। तो राउंड्स का मतलब जो सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड, मैं एक मतलब पैटर्न भी बता सकती हूँ कि किस तरीके से कंपनीज यूजुअली फॉलो करती हैं। तो कंपनीज में जैसे कुछ में ऐसा था कि फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, लाइक सबसे पहले तो रिज्यूमे सिलेक्ट होकर भी, रिज्यूमे फिल्टर होने के बाद भी जब एचआर की कॉल आई है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि एचआरस ही कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। टेक्निकल साइड पर ही कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ सीक्वल के बारे में पूछ लिया, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, कुछ टूल स्पेसिफिक पूछ लिया। तो वहाँ पर भी वो एक तरीके से फ़िल्टर करते हैं कि जो रिज़्यूमे में लिखा हुआ है, वो एक्चुअली ट्रुथ है या फिर नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा एचआर जो है उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए। उसके बाद कुछ कंपनीज़ में मेरा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ, जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आई सॉ क्वेश्चंस ऑन सीक्वल, पाइथन और एडब्ल्यूएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस हैं कुछ। कुछ सीक्वल पे मल्टीपल चॉइस भी हैं और कुछ कोडिंग टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो इस तरीके का 1 घंटे का या फिर 40-45 मिनट्स का टेस्ट, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद जो सेकंड है, अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं, देन टेक्निकल राउंड्स 2 से 3 जो है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऐसा रहता है कि कोई सीनियर डेटा इंजीनियर ले रहे हैं, उसके बाद कोई मैनेजर लेवल पे है वो, और उसके बाद कोई सपोज कोई लीड या फिर बिल्कुल हेड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग है, दे आर टेकिंग द इंटरव्यू। तो थर्ड कुछ कंपनीज में होता है, कुछ में नहीं। और टू तो मैंने मोस्टली सब कंपनीज में 2 टेक्निकल राउंड्स तो थे। अ, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनमें मैंने जैसे कि डी शॉ हो गया, तो जो प्रोडक्ट्स बेस्ड साइड पे हैं उन पे केस स्टडी राउंड्स देखे। केस स्टडी राउंड्स में दे विल गिव यू अ पर्टिकुलर केस स्टडी एंड उसको तुम्हें शेयर करेंगे इंटरव्यू में, एंड यू जस्ट गो थ्रू इट। एंड जो भी तुम्हें एकदम से अप्रोच आ रही है दिमाग में कि ऐसे यू विल बी अप्रोचिंग द बिजनेस प्रॉब्लम, so they judge you on basis of your approach that you are providing। तो उसके ऊपर बाकी जो 2 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो टेक्निकल राउंड 1 में आई हैव सीन that they may ask you to share up your screen and they can ask you questions or coding problem they can any give you, and you have to just write down the code or the SQL problem। SQL के अंदर they can ask you about joins, window functions, CTs, सब queries। Python के अंदर similarly आपसे list के बारे में, डिक्शनरी के बारे में कुछ कोड दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके अलावा they can ask you questions around AWS if listed, डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, एंड द टूल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन दी रिज्यूमे। Apart from that, they go deep dive into the projects that you have done। तो उसके अंदर दे आस्क क्वेश्चंस कि विच टूल्स यू हैव यूज्ड और क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, व्हाट वाज योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसके अराउंड फर्स्ट टेक्निकल राउंड में इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन दी सेकेंड राउंड इट्स मोस्टली थोड़ा सा टफर रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टेक्निकल। वहाँ पर दे कैन आस्क यू कुछ में कोडिंग प्रॉब्लम भी दे देते हैं, लाइक सिमिलरली
हम्म। सीक्वल या पाइथन पे थोड़ी सी हार्ड लेवल की हो सकती है। उसके अलावा इट मे बी केस स्टडी राउंड ऑल्सो, और या फिर कोई स्पेसिफिक राउंड भी हो सकता है एज पर पर्टिकुलर टेक स्टैक, जैसे कि पाइस्पार्क का कोई स्पेसिफिक राउंड ही हो गया कि पाइस्पार्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, या फिर अगर उन्हें AWS की रिक्वायरमेंट है तो AWS के अराउंड हो गया, या फिर स्नोफ्लेक के अराउंड हो गया। तो इस तरीके के राउंड्स भी मैंने खुद एक्सपीरियंस करें टेक स्पेसिफिक। तो दैट डिपेंड्स कि आप थोड़ा सा जेडी को भी उस टाइम पे कंपनी में इंटरव्यू से पहले थोड़ा गो थ्रू करके जाओ कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। हम्म। तो उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यूअर किन एरियाज के अराउंड बात करने वाले हैं, या फिर मेरे रिज्यूमे में से इस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। तो एक प्रिपरेशन के लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगी प्रॉपर इंटरव्यू से पहले। बाकी एक चीज़ मैं ये भी करती थी कि लिंक्डइन से जब जैसे किसी XYZ कंपनी का मेरा इंटरव्यू है, तो मैं लिंक्डइन पर जाकर उस कंपनी के जो डेटा इंजीनियर्स हैं उनसे खुद से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजकर एक दो लोगों से कनेक्ट कर लेती थी, डेटा इंजीनियर से। उनसे मैं थोड़ा कंपनी का कल्चर, एनवायरनमेंट और क्या टूल्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर क्या अभी किन टूल्स पे POC चल रही है, या फिर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर डेटा इंजीनियरिंग में, थोड़ा उसके बारे में इंसाइट्स ले लेती थी। तो उससे एक हेल्प मिल जाती थी कि तो ये भी इफेक्टिव रहता है। कुछ लोग हेल्प कर देते हैं लिंक्डइन पे, तो वो लाइक काफी मतलब लोग हैं। लिंक्डइन इज वेरी हेल्पफुल। हाँ, यस। लिंक्डइन में जो लोग रिप्लाई करते हैं और हेल्प भी करते हाँ हैं। जी। अब आपने बात की केस स्टडी पे, थोड़ा हम्म। उस पे इंसाइट्स दीजिए कि किस टाइप के केस स्टडीज पूछे जाते हैं। केस स्टडीज मैं बोलूँगी इट्स सिमिलर लाइक दे वांट टू अंडरस्टैंड योर मे बी कोई uh, जैसे कि दे विल प्रोवाइड यू सम डेटा सेट्स, जैसे कि कुछ एक पर्टिकुलर सिनेरियो दे दिया। इट विल बी मोस्टली अराउंड केस स्टडीज अराउंड डेटा सिनेरियोज, जैसे डेटा इंजीनियरिंग में जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक अगर डेटा वॉल्यूम ज़्यादा है तो दे विल गिव यू सम डेटा सेट्स एंड दे विल आस्क यू कि आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे, राइट right? और कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज हो गई, या फिर कुछ डेटाबेसेस स्लो हैं, कुछ बॉटलनेक्स आ रहे हैं, उसके अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर कोई ETL पाइपलाइन स्केलेबल डिज़ाइन करनी है, ई-कॉमर्स कंपनी की सपोज पाइपलाइन डिज़ाइन करनी है, इन सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो उस तरीके से कुछ केस स्टडीज़ में डिफरेंट डेटा सेट्स भी हो सकते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिस्टेड हो सकती है, जिसको आपको पढ़ना है और थोड़ा ETL की डायरेक्शन में कि डेटा किस तरीके से और इफेक्टिवली ला सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन किन किन टूल से कर सकते हो या कैसे कर सकते हो, कैसे उस डेटा को कहाँ लोड करोगे, राइट, कौन से टूल्स को यूज़ करोगे उन उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। एंड इट कैन बी मोस्टली अराउंड की ऑप्टिमाइजेशन, स्केलेबिलिटी, इसके अराउंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स की कितनी नॉलेज है, हम्म। राइट, किसी पर्टिकुलर टूल के अलावा कोई भी कि कोई पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर स्नोफ्लेक यूज कर रहे हो तो किस तरीके का डेटा तुम फैक्ट और डिम टेबल्स के अंदर रखोगे, SCD2 SCD1 कहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। तो वो थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, जिन टूल्स पे वो लोग काम कर रहे हैं तो वो उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके अराउंड कैसे प्रॉब्लम है। तो इस तरीके मोस्टली से होता है। रियल टाइम सिनेरियोज पे, बिकॉज वो लोग यस। स्टडी बेसिकली रियल टाइम सिनेरियो पे ही आपको बता देंगे कि ये डेटा हाँ है, आप जी। कैसे अप्रोच करोगे चीज़ों को। तो वो हाँ जी। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक्चुअली अप्रोच आपका दिखाता है, प्लस वो उसी में ही आपके कैपेबिलिटीज भी देख लेते हैं कि आप प्रोजेक्ट में यस। स्पेसिफिकली आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, आई वुड से द केस स्टडी राउंड दैट इधर मैनेजर, हायरिंग मैनेजर या सीनियर डेटा इंजीनियर लोग पूछते हैं। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी ट्रू। हाँ, वेरी ट्रू। जेडएस में ऐसा ही हुआ था कि जो प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी पर्टिकुलर, और जब मैं टीम में गई तो मैं देख रही हूँ कि वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व करनी है। ट्रू, तो ट्रू, ऐसा ट्रू। हो यस, ऐसा होता है, वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा आपको दे देंगे, या फिर वो पूरी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं आपसे, और हो सकता है एक्चुअली में कंपनी इज फेसिंग दैट। तो जेडएस में इट्स ट्रू, मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला था कि वहां पर सेम प्रॉब्लम थी। True. तो हाँ जी। Because one of my student who was appearing for interview, he said that the same problem they were facing, and the same हुँ, thing they couldn't solve it in the project yet. Once he was hired, also they were solving the same problem.
पूरा बड़ा सा प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है छोटा सा स्निपेट, पूरा ही प्रॉब्लम उठा के उसको दे दिया था इंटरव्यू में। इंटरव्यू अच्छा। में उसने थोड़ा सा अप्रोच बताया था, पूरा तो सॉल्व नहीं करेगा हुँ। था, तो थोड़ा सा अप्रोच हुँ। बता दिया था। अब जब वो जाता है जॉब में, देखता है, बोलता है ये तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही वही है जो पुलिस करता है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो उसी यस। को हायर किया गया है कि तुम इसको सॉल्व करो, मतलब इट्स अ किडिंग पार्ट कि तुम्हें हायर किया गया है उसके लिए, बट ऐसा नहीं है। तुम केपेबल हो तो इट्स बेटर यू कम एंड यू ट्राई इट आउट एंड यू सॉल्व इट बेसिकली। तो वही चीज देखा यस। जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Like, you are giving so much effort giving the interviews, and the goal is कि जब कंपनी में जाएं काम करें तो उसमें मज़ा भी आना चाहिए, राइट? कोई ऐसा टेक स्टैक है जिस पे आपको नहीं पसंद है उस पर काम करना, या फिर यू हैव मे बी डिफरेंट ऑफर्स, तो एटलीस्ट यू कैन चूज बेस्ट फॉर योर सेल्फ। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काम को एक्चुअली में भी थोड़ा इंसाइट्स ले लेना, जान लेना कि किस तरीके का काम होने वाला है। तो वो चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये चीज़ मैंने करी थी, मैंने थोड़ा काम को समझ लिया था जाने से पहले डिफरेंट कंपनीज़ में कि किस तरीके का काम होने वाला है। तो उससे मुझे हेल्प मिली थी टू डिसाइड बेस्ट फॉर माई सेल्फ, और वो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो अभी आप जब इंटरव्यू प्रोसेस का बात कर रहे थे, तो डिफरेंट राउंड्स है इसमें, आपको कहीं पे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डीएसए का राउंड पूछा गया था क्या? डीएसए का ऐसा स्पेसिफिक राउंड तो नहीं हुआ, हम्म। बट जैसे कि टेक्निकल राउंड्स ही हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसके अंदर दे कैन गिव यू सम कोडिंग प्रॉब्लम। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई लीड कोड से प्रॉब्लम भी वो दे सकते हैं आपको। ज़्यादा जो मैंने वेटेज देखी, या ज़्यादा जो राउंड्स के अंदर पूछा गया है वो सीक्वल रही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड्स में सीक्वल पे बहुत ज़्यादा रहता था कि वेटेज भी ज़्यादा है, और दे गिव यू अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, और वो सीक्वल पे होती थी। या फिर मैंने पाइथन पे भी लिस्ट और डिक्शनरीज पे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, लिस्ट डिक्शनरीज पे यूजुअली यू विल सी। बट जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, लाइक ट्रीज, ग्राफ्स एंड डीपी, उस तरीके के क्वेश्चंस ऐसा नहीं पूछा जाता है फॉर डेटा इंजीनियरिंग राउंड्स। उसके अलावा जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स है, कुछ कंपनीज में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो वहाँ पे भी यू कैन सी एनी कोडिंग क्वेश्चन, बट वो भी ऐसे सीक्वल या फिर लीड कोड मीडियम तक के कोडिंग प्रॉब्लम होगा। उसके डेटा स्ट्रक्चर्स का अगर होगा, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स साइड पे मैंने नहीं देखा ऑनलाइन असेसमेंट्स में भी। हाँ जी। अच्छा, तो अब जब डेटा इंजीनियरिंग का आप प्रिपेयर करते हैं, यू वर आल्सो वर्किंग, राइट? हाउ हाँ। डिफिकल्ट वाज इट टू मैनेज योर वर्क इन ZS along with preparation strategy and then applying it? It would have been very tough, I know, but you can tell like what exactly you did to do it. जब मैं जेमिनी में प्रिपरेशन कर रही थी, तब तो इट वाज़ टफ़, ज़्यादा टफ़ था, क्योंकि मेरे को डेटा इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था। वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा था, अलग से चीज़ें प्रिपेयर करने में। मार्केट मार्केट में जो आस्क है डेटा इंजीनियरिंग की, उसके अकॉर्डिंग रेडी करने के लिए खुद को मुझे टाइम लग रहा था। तो वहाँ पर तो ऐसा होता था कि कंपनी के दौरान ना मैं वीकेंड्स का यूटिलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा कर रही थी उस टाइम पे, जब आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है, अब मुझे जाना है, तो तब मैं वीकेंड्स पे अपना टाइम ज़्यादा देने लगी थी। उसके अलावा बीच में कोई फेस्टिवल आ रहा है, हॉलीडेज़ आ रहे हैं, तो उन पर भी मेरे को थोड़ा 2, 3, 4 घंटे स्टडी कर लिया अच्छे से। अ, उसके बाद जो अ, जैसे कि इंटरव्यू है अगले दिन, तो मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज़ करती थी कि मॉर्निंग में जो है वो प्रिपरेशन हो जाए, जो भी मैंने अब तक प्रिपेयर करा है उसको रिवाइज़ कर लूँ। और उसके अलावा एक बेनिफिट मुझे मिला कि वहाँ पे भी हाइब्रिड था। तो हाइब्रिड में जिस दिन मैं 1 और 2 डेज़ वर्क फ्रॉम होम कर लेती थी, तो सुबह को जो भी प्रायोरिटी टास्क्स हैं वो कंप्लीट करके आई मेड श्योर कि कुछ आवर्स तो एटलीस्ट मैं प्रिपरेशन के अंदर लगा दूँ। बिकॉज़ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने कुछ दिन स्किप कर दिया, देन यू प्रिपेयर फॉर 6 आवर्स, देन स्किप कर दिया, फिर उस दिन तो लेकर बैठे 4-5 घंटे तक। तो वो ऐसे ब्रेक जो आता रहता है ना, उससे मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जब करो, लग के करो, अच्छे से करो।
तो वहाँ पर साथ में आई थिंक वीकेंड्स जो होते हैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा जब कंपनी का काम भी है तो या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में, अगर स्टडी करने की आदत है तो रात में आधा एक घंटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। तो हुँ, उससे ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है। हुँ, तो फ़ायदा मिलता है। अगर लेट्स सपोज अगले दिन इंटरव्यू आ गया, एकदम से कॉल आ गई है और इंटरव्यू, तो फिर डर नहीं लगता बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली। तो वहाँ पे वो जो फ़ियर है ना, वो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि ठीक है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ, रिजेक्शन भी हुई, ठीक है, मैं दे आता हूँ इंटरव्यू। बहुत सारे लोग डिले करते रहते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए या फिर नहीं देते, तो वो सही नहीं होता बिकॉज़ जो तुम इंटरव्यू देकर सीखोगे, खुद से कितना ही पढ़ते रहो, नहीं हो पाती वो प्रिपरेशन। सही तो बात। वीकेंड्स का प्लस जो हॉलीडेज़ वगैरह आ रहे हैं वो, और अगर हाइब्रिड है, मोस्टली लोगों का होता है, तो उसका भी यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम है तो 1-2 घंटे निकाल लो और उस टाइम पे भी थोड़ा एफर्ट डाल लो, मन को मना लो, हो जाएगा। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और वही हाँ, कहावत जो है वो तो करना ही पड़ेगा। एवरी डे थोड़ा-थोड़ा करके आप कुछ पाने के लिए अपना टाइम उस चीज़ में डिवोट करना ही है आपको। तो वो मेरे को बहुत याद है हाँ, मेरे को याद है जेमिनी में एक ट्रिप जा रहा था और मेरा कुछ दिन बाद इंटरव्यू था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था ट्रिप पे जाने का, लेकिन वही कुछ खोना पड़ता है, तो आई डिसाइडेड कि यार ठीक है, अब तैयारी ही कर लेते हैं। और वो तो खोना मैं कहीं आपके लिए अच्छा रहा इन लॉन्ग रन हाँ, तो वो चीज़ फिर मैं ज़ेडएस में ट्रिप पर गई थी। तो ऐसा होता है। तो वही बात है, अच्छी बात है। मतलब ये लोगों को पता होना चाहिए कि एवरीडे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करते रहो ताकि जब भी इंटरव्यू कॉल आए आप उसको डिले नहीं करो, उसको उसी टाइम हाँ जी। इंटरव्यू दे दो। ताकि आपने बोला इंटरव्यू में जो सीख सकते हो शायद उतना आप 10 दिन बाद अगर इंटरव्यू दोगे उसमें अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप उतना ही प्रिपेयर्ड रहोगे जितना 10 दिन बाद दोगे। तो इससे बेटर है हाँ जी। थोड़ा-थोड़ा करना बेटर रहेगा। बहुत सही चीज़ है। तो आपने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया लेट्स से इंटरव्यू प्रिपेयर कर लिया इतना हसल और स्मार्ट वर्क के साथ। तो आपने कोई मेंटर लिया था क्या जब आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे थे? आपने बोला कि आप कंपनी के अंदर आपने प्रोजेक्ट्स किए थे, पर कोई मेंटर स्पेसिफिक मेंटर था जो आपको बताया कि हाँ, ऐसे करो, मेंटर इम्पोर्टेंट है या नहीं ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लो सब? देखो, मैंने ऐसे मेंटर नहीं लिया था कोई, बट आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दी फोक्स। जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन जब कर रही हूँ, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिसेंटली स्विच किया था। तो गिवन वो सेम कंपनी से दे हैव स्विच, तो दे हैव बेटर थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। एक वो आपका काम और प्रोजेक्ट को भी समझ सकते हैं, आपके रिज्यूमे, आपकी सिचुएशन को। प्लस उन्होंने अभी रिसेंटली किया है, तो मैंने उन लोगों से थोड़ी मदद ली डेटा इंजीनियरिंग के अंदर, जो स्पेसिफिकली लोग गए थे, कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन जो पैटर्न्स उन्होंने इंटरव्यूज में देखे हैं। हुँ, तो वो मैंने वहाँ से समझा। उसके अलावा मैंने जेडीज़ को गो थ्रू किया, लाइक 3 टू 4 5 जेडीज़ को मैंने पिक किया और उनको देखा कि एक्सपेक्टेशंस वाले एरियाज़ में क्या-क्या लिखा हुआ है, राइट? उसके अलावा जैसे लिंक्डइन या फिर यूट्यूब से जो कुछ होता है, रोड मैप्स हैं या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ैक्ट रोड मैप अगर किसी ने दिया उसको फ़ॉलो किया है। आई सॉ दोज़ कि ऐसे-ऐसे किसी ने पैटर्न बताया हुआ है, रोड मैप किसी ने ऐसे बताया हुआ है। देन आई फिगर्ड आउट मायसेल्फ व्हिच आर माय वीक एरियाज़, व्हिच आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज़, व्हाट आई नीड टू पुट एफर्ट इन, व्हाट आई एम गुड एट, राइट? तो ये सारा जो मेरा खुद का रोड मैप था, वो मैंने अपना खुद से पर्सनलाइज्ड रोड मैप बनाया एक, कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पहले डेटा इंजीनियरिंग में, मुझे क्या आता है, क्या सीखना पड़ेगा, कैसे मुझे अपना रिज्यूमे फ्रेम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अलग-अलग सोर्सेस से मैंने एक नॉलेज तो ले ली थी, किस तरीके से राउंड्स होते हैं, कैसे होता है। बाकी लिंक्डइन से कनेक्ट करके इंटरव्यू राउंड्स के बारे में भी थोड़ा अच्छे से समझ लिया था। जैसे हू रिसेंटली जॉइन्ड इन सम कंपनी और उसी कंपनी में मेरा इंटरव्यू है। तो मैं समझती थी कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो अगर मेरे को लगता था कि मेरा कुछ गलत डायरेक्शन में भी मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक खुद से अगर थोड़े से सोर्सेस से आप ये देख लो कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और प्रॉपर पता हो और फिर राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालो, तो आई डोंट थिंक
ऐसे कोई स्पेसिफिक मेंटर चाहिए। So तो basically, you were the mentor of yourself, which is the best I would हाँ। say. मतलब आपने सब नॉलेज गैदर किया सब जगह से और पर्सनलाइज्ड रोड मैप बनाया कि ये मेरे लिए सही है, ये चीज़ में फोकस करना है, वो चीज़ बहुत सही है बिकॉज आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। मतलब आपके अलावा किसी और को नहीं पता होगा, आपको ही पता है, तो उसी हिसाब से आप अपना एक रोड मैप बनाओ और करो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है वो। और जैसे कुछ होता है ना, कोर्सेज होते हैं या फिर कुछ ऐसे 6 मंथ्स 8 मंथ्स, दे प्रॉमिस ऑल्सो कि दे विल हेल्प यू लैंडिंग अ जॉब एट ड्रीम कंपनी। मतलब होता होगा ऐसा, मैं मना नहीं करती हूँ, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई उनके रोड मैप से अब, कि मुझे उसी टाइम पे वही करना है। और मुझे उस चीज़ से ऐसा लगता था कि मेरे को फ्री होके खुद से पढ़ना है, एक फ्रीडम में पढ़ना है। आई वॉन्ट टू फील इंडिपेंडेंट वाइल स्टडिंग। और एंड आई नो बेटर कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं या फिर मुझे कहाँ एफर्ट डालना है। और आई थिंक इंटरव्यूज वर द बेस्ट मेंटर फॉर मी। वो थे मेरे मेंटर्स, तो सही मेंटर्स अगर मैं कहूँ। हुँ, मैंने बहुत सारी रिजेक्शन फेस करी हैं, लाइक अराउंड 30 to 35 इंटरव्यूज तो होंगे स्टार्टिंग में जो नहीं अच्छे जा रहे थे। इवन कुछ इंटरव्यूज थे जिनमें स्टार्टिंग में 10 12 15 इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट भी हो रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मान लो मैं सिलेक्ट भी हो रही हूँ किसी इंटरव्यू में, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी इंटरव्यूज देख के। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं और बेटर कर सकती हूँ इनके अंदर, और बेटर मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। सेटिस्फैक्ट्री लेवल के नहीं हुए इंटरव्यूज मेरे। तो जो भी इंटरव्यूज में मैं ऐसा था कि क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रही हूँ या फिर ऐसे पीसेस में आंसर कर रहा है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आके अच्छे से देखती थी। इवन जिन इंटरव्यूज में मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ, मैं उनके क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ती थी कि हाँ इसमें तो हो गया, ये क्वेश्चंस तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं इसलिए। हर क्वेश्चन पे अगर तुम सिलेक्ट भी हो गए, देर इज ऑलवेज अ स्कोप कि तुम उसे और बेटर फ्रेम कर सकते हो, तुम और बेटर डेटा स्टोरीज बना सकते हो, तुम और अच्छे तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो। तो वो स्कोप इवन जब लाइक 1 or 2 ऑफर्स आ गए थे, उसके बाद भी आई हैड टाइम, लाइक इन माई नोटिस पीरियड आई डिड नॉट स्टॉप माई प्रिपरेशन एट दैट टाइम ऑल्सो। आई फेल्ट लाइक दैट आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर, इससे अच्छा भी हो सकता है। एटलीस्ट अपना पोटेंशियल अच्छे से देखो, कहाँ तक यू कैन पुश योर सेल्फ। एक बार कंपनी में हो गया, चले गए, फिर तो काम करना ही है ना। वो जो एक पर्टिकुलर टाइम मिला है उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डालो, अपनी तरफ से ये देखो कि व्हाट कितना और बेस्ट इंटरव्यू दे सकते हो। और हमेशा स्कोप होता है, कभी 100% बेस्ट इंटरव्यू नहीं कोई दे के आता, देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इंटरव्यूज में कहूंगी वो मेरे मेंटर्स थे, दैट्स या वेरी फॉर गुड। श्योर थे। दैट वाज़ वेरी गुड एक्चुअली, मतलब किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा, जो आपको देख रही होगी वो भी ऐसा सोच नहीं सकता कि आपके मेंटर एक्चुअली इंटरव्यूअर्स थे, जो आपके इंटरव्यू लिए हैं। और आपने जो बोला, एक हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आपने देखा है कि मैंने यस। इंटरव्यू क्रैक तो कर लिया पर आई कुड हैव डन और मे बी 1% मोर बेटर, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जो आपने देखा एंड यू अगेन फ्रेम्ड दोज़ आंसर्स एंड देन यू डिलिवर्ड इट। लाइक वो बहुत सही चीज़ है, लाइक इट शुड बी एवरीवन स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, तो बहुत सही चीज़ आपने बोला। तो आपने जब 4 इंटरव्यू बैक मतलब क्लियर किए हैं, उसके बाद आपको आपने डिसाइड कैसे किया कि मेरे को यही कंपनी में जाना है? क्योंकि 4 कंपनी से एक फिगर आउट करना, अरे चारों कंपनी अच्छी है, अब मेरे को कौन से कंपनी में जाना है? कुछ फैक्टर्स आप डिसाइड करोगे, सिर्फ सैलरी भी है, उसके साथ-साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को यहीं जाना है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके अंदर ना हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, लाइक व्हाट दे वांट। तो मेरी भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रायोरिटीज कह लो, या फिर मेरे भी ऐसे कुछ चेक बॉक्सेस थे दैट आई वांटेड टू चेक कि किसी कंपनी में जाने से पहले ऐसा 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 हो। सैलरी वन ऑफ द फैक्टर रहता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि जब मैं डिसाइड कर रही थी, तो आई कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ ऑल द कंपनीज, जिन जिन से ऑफर आया था मैंने सबसे कनेक्ट किया था। आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। अ, उसको समझने से बहुत सारा आइडिया पहले ही आपको पता लग जाता है कि व्हाट गोना हैपन विद यू। जब आप जाओगे तो आपका डेली का टाइम जो है, सैलरी एक दिन आनी है, पूरा जो 1 महीना है वो कैसे जाने वाला है आपका। तो वहाँ पे वर्क कल्चर हो गया, कंपनी का एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद आई आस्क अबाउट द स्पेसिफिक जो टूल्स पर काम हो रहा है, किस टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है।
ठीक है। उसके अलावा इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो भी मैं देखती थी कि सर्विस मतलब किसी क्लाइंट के लिए काम करना है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसके अलावा लोकेशन क्या है, वेदर इट्स बैंगलोर, इट्स हैदराबाद, इट्स गुड़गांव एंड व्हाट्स प्रेफरेबल फॉर मी, वो फैक्टर हो जाता है एक। उसके अलावा कई बार शिफ्ट्स में भी काम करना होता है। डेटा इंजीनियरिंग में नहीं होता, बट कुछ रोल्स में जैसे होता है कि सैटरडे संडेज वर्किंग हो सकते हैं, शिफ्ट्स में हो सकता है, तो वो भी मैं पूछ लेती थी कि ऐसा तो नहीं होगा। बाकी क्या कहते हैं, कितना मतलब किस तरीके से कितना टाइम ऑफ मिलता है या फिर तो वो चीज़ें भी आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आई asked with the different folks working in the company from which I had offers. तो ओके। हाँ, मतलब सब yeah. कुछ तोल-मरोड़ के देख के फिर आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओनली Yes, सैलरी इज़ नॉट द फैक्टर, जैसे आपने बोला, yes. उसी हिसाब से आपने डिसाइड किया। तो इस केस में आपने प्रोडक्ट बेस में भी काम किया भी और सर्विस बेस में भी काम किया। सबसे मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा कि ये सर्विस बेस में है और ये प्रोडक्ट बेस में है? सबसे मेजर क्या था? सर्विस बेस में ना एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है क्लाइंट का दैट आई फील लाइक कि मतलब वहाँ पे क्लाइंट के लिए डिलीवरेबल्स करने होते हैं जो उसमें फील मतलब थोड़ी सी अर्जेंसी काइंड ऑफ कह लो कि रहती है। और बिजनेस को इतनी क्लोजली तुम एक्सपीरियंस नहीं करते, यू आर जस्ट वर्किंग एंड क्लाइंट को डिलीवरी करनी है, इस पर ज़्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू जब आप प्रोडक्ट बेस में काम करते हो ना। तो आपको ये पता होता है कि आपने ये पीस ऑफ कोड लिखा है, आपने ये काम करा है, इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, वो आप बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, राइट। और उसके अलावा जो वन ऑफ द बिग फैक्टर्स है वो वर्क लाइफ बैलेंस भी है। जो सर्विस बेस्ड है उसमें थोड़ा बिगड़ा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस। प्रोडक्ट बेस में दे डू टेक केयर, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। आई थिंक यही मेजर रहता है। टूल्स टेक्नोलॉजीज पे तो जो आप काम कर रहे हो कॉमन भी हो सकते हैं, उस पर इतना नहीं। बाकी थोड़ा सा सैलरीज में डिफरेंस कह लो, बट मैंने तो देखा है सर्विस बेस भी काफ़ी अच्छा पे कर रही होती है। इफ रोल मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रोल पर मैटर करता है, बट ऐसा नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनीज नहीं देती, बट प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा एज रहती है। तो ये डिफरेंस हो सकता है, बट ये बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कोई भी ऐसा तुम्हें पे नहीं करेगी अच्छा। तो सर्विस बेस्ड भी दे देती है, बट हाँ जो पहले दो फैक्टर्स है वो आई एफ सी। ओके, ओके, दैट्स गुड इनसाइट। मतलब लोगों को लगता है कि मेरे को बस प्रोडक्ट बेस में काम करना है, सर्विस बेस में नहीं करना है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि सबको प्रोडक्ट बेस में जाना है, पर क्यों जाना है लोगों को ये नहीं पता होता है कि नहीं, मेरे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब सर्विस बेस का जो एक्सपोज़र है ना, को। आई वुड से स्टार्टिंग में जैसे मेरे को जेमिनी में और ज़ेडएस में जो सर्विस बेस का एक्सपीरियंस मिला, आई थिंक वो कांस्टेंट प्रेशर या फिर एक जो अर्जेंसी है या फिर जो सीखने के लिए जो मिला, मतलब वो अनमैचेबल है। ज़ेडएस में व्हेन आई वर्क्ड देयर ऑन डिफरेंट डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पे थोड़ा मतलब जिन-जिन टूल्स पे काम किया, मुझे उसका मतलब ऐसा है कि मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे सीखा, इतना ज़्यादा ग्रो किया, तो वो भी अनमैचेबल होता है। हुँ, हाँ, जब आपके पास दोनों कंपनीज़ से ऑफ़र्स हैं, देन यू हैव टू डिसाइड, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट सर्विस बेस में काम करके इफ यू फील लाइक कि नहीं मतलब प्रोडक्ट बेस में ही जाना है, ऐसे रिस्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हर कंपनी कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी, बहुत अच्छा सिखाएगी। हुँ, अ, आपके ऊपर भी आप क्या सीख रहे हैं, राइट? कि कितना सीख रहे हैं, कितना वहाँ पर आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। करेक्ट, बट everywhere in every project you can, if there is no scope you can make a scope, you can see the areas जहाँ पे improvement चाहिए, जहाँ पे आप effort डाल सकते हो। तो for sure I had offers from service based भी और product based भी, there I choose कि इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। बट सर्विस बेस का भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग्स रही, उन्हीं को आज मैं प्रोडक्ट बेस में याद करके लगा रही होती हूँ, अप्लाई कर रही होती हूँ कि यार ये काम वहाँ पे ऐसे किया था, ये काम वहाँ पे ऐसे किया था, तो वो अपने आप याद आता है। तो वो एक्सपीरियंस वाज़ बिल्कुल। कि
वो बहुत बिल्कुल, वो भी मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इज़ रियली नाइस। मतलब सब ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस अच्छा नहीं है, सर्विस बेस बहुत कुछ सिखाता है जैसे आपने बोला, और हर प्रोजेक्ट यस। आपको कुछ नया चीज़ सिखाएगा। तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, इसमें नहीं काम करना है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब जाओगे उसमें आप इम्प्लीमेंट करोगे जैसे आपने बोला। वो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब मैंने अपनी करियर शुरू किया था मैंने बोला यार इस प्रोजेक्ट में क्या सीखने को मिलेगा? तो मेरा जो हुँ। मेंटर था उस टाइम, उसने मेरे को ये बहुत अच्छी सीख दी थी कि हर प्रोजेक्ट में आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये कभी नहीं सोचना कि इस प्रोजेक्ट में आपको सीखने को कम मिलेगा या ज़्यादा कुछ नहीं है, हमेशा है। आप उसमें ढूँढो क्या सीखना है आपको। मेरे मैनेजर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे, मतलब जेमिनी में द मैनेजर आई हैड ही वाज वेरी सपोर्टिव। मतलब आई वेंट एज अ फ्रेशर ओनली, राइट? तो हर तरीके से पहली बार कॉरपोरेट में आ रहे हो आप, राइट? वहाँ पे फिर तुम बिजनेस रिलेटेड जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे तुम काम करने वाले हो, राइट? तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता लेकिन इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। तो आई हैड वेरी गुड मैनेजर देयर। जेडएस में भी आई हैड वेरी ग्रेट टीम मेंबर्स, वेरी ग्रेट मैनेजर जो सपोर्ट करते थे। अभी टाइड में भी बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। वहाँ पे ऑलवेज जो सपोर्टिव लोग आसपास होते हैं, दे हेल्प यू ग्रो। तो यू ग्रो, आप भी एफर्ट डालते हो, आपका भी मन करता है, राइट? तो वहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। अ, तो आई थिंक गुड मेंटर्स आपको जहाँ पे भी जो भी मिल रहे हैं, मेक बेस्ट आउट ऑफ कि आप उनसे सीखो जितना सीख सकते हो, राइट? तो इवन मतलब लेट टाइम में भी 8-9 बजे कहीं कोई इशू आ रहा है, कुछ आ रहा है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल है जो करना है, आई आस्क देम और वो मेरी हेल्प कर देते थे। तो इट इज समथिंग कि आप स्टक हो रहे हो एंड दे आर हेल्पिंग यू। प्लस आप क्लाइंट रोल्स में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में जब काम करते हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हो। आपको जब क्लाइंट को डिलीवरी करनी है, पर्टिकुलर टाइम पे करनी है, और खुद से सब कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके देनी होती है, तो देर इज़ अ ऑनरशिप वाली चीज़ आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आती है अपने अंदर। तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर जो मैंने जेडएस और जेमिनी से बहुत सीखा है कि हाउ टू ओन। अगर पर्टिकुलर टास्क आपको असाइन किया गया तो वो आप ही को असाइन किया गया, आपको उस पर अपना बेस्ट एफर्ट डाल के देना है। नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक हेल्प, बट इट्स योर टास्क। तो वो एक ऑनरशिप वाली जो चीज़ है वो भी आपको आती है जब आप गुड मेंटर्स के साथ काम कर रहे हो, उन्हें काम करते हुए देखते हो, उनसे सीखते हो। तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मतलब बहुत सही चीज़ है कि सबको एक्चुअली सीखना चाहिए ये चीज़ जो आपने बोली। तो दैट्स रियली नाइस। अभी अगर आपने जब सब कुछ देख लिया, जब आपके पास कॉल्स आ रहे थे, आपने कभी ये फेस किया कि नोटिस पीरियड आपके इतने महीने के हैं एंड मे बी एचआर लोग को इमीडिएट जॉइनिंग चाहिए, तो हम्म। आपने कैसे उस चीज़ को टैकल किया कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं तो आपने इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया उस केस में? ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही कि बी ट्रांसपेरेंट विद रिक्रूटर्स। जो भी आपका नोटिस पीरियड है मैंने मेंशन किया उनको। सम यू कैन मेंशन, जब नोटिस पीरियड के बारे में बात होती है तो 30 डेज और 60 डेज जहाँ पे होता है वो मैनेजेबल होता है। रिक्रूटर्स अंडरस्टैंड दैट दे आर सीइंग फॉर इमीडिएट जॉइनर्स, बट जो नहीं होते हैं, एंड इफ योर रिज्यूमे इज गुड, टेक्निकल स्किल्स आर गुड, तो 30 डेज 60 डेज पर फिर भी कॉल्स आते हैं कंपेयर टू 90 डेज नोटिस पीरियड। तो 90 डेज पे यू कैन मेंशन द रिक्रूटर कि हम आई विल ट्राई टू नेगोशिएट विद माई मैनेजर, और यू कैन ट्राई आस्किंग इफ देयर इज एनी ऑप्शन ऑफ बाय आउट, राइट? तो बाय आउट भी कुछ कंपनीज के अंदर होता है, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ कंपनीज जिनका 3 मंथ्स नोटिस पीरियड होता है, उनमें यू कैन ट्राई टू गो फॉर दोज कंपनीज जिनका 3 मंथ्स नोटिस पीरियड खुद भी है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इनका 3 मंथ्स का होता है। तो वहाँ पर कॉल्स, मतलब कॉल्स आने थोड़ा सा कम होता है 90 डेज पे, बट स्टिल यू कैन गेट दी कॉल्स अगर रेफरल्स के थ्रू एक बार इंटरव्यू कॉल शेड्यूल करवा ली। और मैं यही बोलती हूँ 90 डेज में कि एक बार ही एक ऑफर के लिए तो जरूर मेहनत है, बट उसके बाद यू हैव फुल 3 मंथ्स, राइट? ऑन 3 मंथ्स में डोंट स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज। यू डोंट नो वेयर यू कैन सी कि यहाँ जाना था मुझे और मैं पहुंच गया, राइट? तो वो 3 मंथ्स में भी कीप गिविंग इंटरव्यूज, डोंट वहां पे लूज कि मतलब अब बैठ गए हो गया एक कंपनी के अंदर। तो 90 डेज के केस में ये चीज कर सकते हैं।
पहला बायआउट हो गया और दूसरा यू कैन मेंशन कि हम मैनेजर से या प्रोजेक्ट में नेगोशिएट अपना करके देखेंगे जो नोटिस पीरियड है। तो इस तरीके से आए। तो जब मेरा स्टार्टिंग के अंदर व्हेन आई वेंट फ्रॉम जेमिनी तो आई गॉट इनटू टास्कस, एक ऑफर मेरा आया था। एंड देन आफ्टर टास्कस द सेकंड ऑफर आई गॉट वाज फ्रॉम जेडएस। Okay. सो देन आई जॉइन जेडएस। तो नोटिस पीरियड के दौरान ही हुआ था वो। दैट्स गुड। तो अभी आप अगर दर्शकों को बताओगे कि आपने जब प्रिपेयर किया, व्हाट टॉप 3 tips that you want to give to the aspiring data engineers or who wants to transition into the data engineering field? ओके, टॉप थ्री। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर एक होता है कि ट्रांजिशन करना है, मतलब एक होता है कि मुझे स्विच करना है, एक होता है मुझे पक्का स्विच करना है जिसमें थोड़ा सा पक्कापन है, वो वाला स्विच करना है। स्विच के लिए तो सारी दुनिया देख रही है लिंक्डइन पे, आई सी, बट जो वो एंथुजियाज्म वाला होता है ना, जैसे मैं टॉपमेट पे जब कॉल्स ले रही होती हूँ तो सम ऑफ द फोक्स कम एंड मुझे स्विच करना है, मुझसे नहीं हो रहा। द सम कम विद कि मानसी मैंने ये कर लिया, मुझे आप प्लीज थोड़ी डायरेक्शन दोगे, या फिर मैंने ये फिगर आउट किया हुआ है, क्या ये सही है गलत है, मुझे कैसे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दो, थोड़ा मुझे करेक्ट कर दो, मैंने ये किया है। तो दिस लुक्स मोर गुड कि भाई यू हैव रिसर्च्ड समथिंग, राइट। और एक बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हो आप, राइट। तो देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, जहाँ से आप मदद ले सकते हो, जहाँ से आप जो लोगों ने स्विच किया है उनकी जर्नी को एटलीस्ट सुन सकते हो कि व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड। तो पहली चीज़ तो अगर सच में यू हैव मेड अप अ माइंड कि मेरे को स्विच करना है, तो डोंट लूज योर, मतलब ऐसा मत सोचो कि यार नहीं हो पाएगा, तो अगर नहीं हुआ तो मतलब नेगेटिव थॉट्स की जगह उसको कन्वर्ट कर दो एक्शंस में एंड काम में लग जाओ। वो काम में कैसे लगना है, क्या लगना है, वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अपना नेगेटिव थॉट्स छोड़ के काम में लग जाओ, राइट। दूसरी चीज जो आपने काम किया है, लाइक जो प्रोजेक्ट किया है, इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लाइक दैट इज अ वर्क दैट कंपनीज आर डूइंग एंड दे आर अर्निंग विया दैट, राइट। तो उसको बहुत अच्छे से समझो, उसके आर्किटेक्चर को समझो, उसके बारे में अच्छे से देखो कि वो काम क्यों हुआ है, क्या हुआ है, आर्किटेक्चर क्या है, मेरा एक्चुअल जो रोल था उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। आपको पता होगा तभी इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि ऐसा ऐसा है। True. तो अपना जो प्रोजेक्ट्स है, एक्सपीरियंस है, उसको और अच्छे से फ्रेम करो, और अच्छे से जो अपनी स्टोरी टेलिंग है, डेटा स्टोरीज फ्रेम करना है। एक है आपको पता है, एक है आपको डिलीवरी करनी आती है, बताना आता है अच्छे से, तो वो बताने वाली चीज़ पे वर्क करो कि सामने वाले को सुन के इंटरेस्टेड फील हो कि ठीक है और क्या किया, उन्हें मज़ा आए सुन के, अच्छा लगे। द थर्ड थिंग आई वुड से जो बहुत मदद करती है, और एक ऑफर ले लिया आपने, इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद इफ यू फील लाइक कि मेरे को और मैं कर सकता हूँ, मुझे अभी भी सेटिस्फैक्ट्री जॉब मैं और अच्छी ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद भी लगे रहो, आई वुड से डोंट स्टॉप देयर, उसके बाद भी जस्ट कीप गोइंग एंड ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क। जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, इफ नो वन इज वॉचिंग यू, यू आर सीइंग योर एफर्ट्स, गॉड इज वॉचिंग यू, उस हार्ड वर्क का रिजल्ट फॉर श्योर मिलता है। पहले मिले बाद में मिले, फॉर श्योर मिलेगा, 100% मिलता है। आपके जो एफर्ट्स ट्रुथफुली आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होके डाले हैं, उस ऑनेस्ट एफर्ट्स के रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने खुद से एक्सपीरियंस करे हैं। तो वो आप बिल्कुल अपने प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट से डालो एफर्ट्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो ये मेरी टॉप 3 एडवाइसेस या रहेंगी, या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया और फॉलो किया। Thank you so much, Mansi. Like, it was really nice because people need motivation and people need someone's journey like you who have cracked so many multiple offers in big organizations, and your journey will be very inspiring to others. So I really hope everyone enjoys this session and will have a very good insight, and they will not stop working towards their goal, basically. So any other thing you want to share, you can definitely. मैं बस यही कहूँगी, लगे रहो, और अगर अभी नहीं लगे हुए हो तो लग जाओ।
और खूब मेहनत करो। फ्रेशर्स को यही है कि इफ़ यू वांट गो इनटू डेटा इंजीनियरिंग और किसी भी फील्ड में, तो कॉलेज का जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, प्रिपेयर करो। एंड वो बहुत बेस्ट टाइम होता है। कंपनी में आने के बाद यू फील लाइक कि अब मेरे को टाइम फाइंड आउट करना पड़ रहा है, राइट? और जो लोग कंपनीज में हैं दे वांट टू स्विच, उनको भी यही कि हार्ड वर्क से ज़्यादा आई थिंक स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है, राइट? हार्ड वर्क से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि डिले हो रही हैं या फिर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आप बस हार्ड वर्क कर रहे हो। कुछ चीज़ें स्मार्टली प्ले करो, अगर नहीं पता तो लोगों से कनेक्ट करो, नेटवर्क विद देम, आस्क विद देम, ट्राई टू नो देयर जर्नी। कहीं से भी इंसाइट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ट्राई टू नेटवर्क एज मच एज यू कैन एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। That's good. Thank you so much, Mansi. The closing session was really nice. Like it will really help others. तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि लिटरली आप फॉलो करो, जर्नी सबकी अलग होती है, आप अपना एफर्ट डालो एंड द गॉड विल लिटरली हेल्प यू आउट इन रीचिंग योर गोल. So thank you so much for joining, Mansi, and it was really insightful. Hope to see you back again in some new session related to data engineering. And I hope all the best for your future. And thank you so much for joining in. थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू। Thank you. Thank you so much for watching, and I wish you have a good day.